قرآن پاک پر اعتراضات کرنے والے اورینٹلسٹ یعنی مستشرقین کا یہ کہنا ہے کہ قرآن پاک کی سورہ کہف میں جس شخصیت جناب ذوالقرنین کا ذکر کیا گیا ہے وہ کوئی تاریخی کردار نہیں ہے، بلکہ وہ عرب کے یہودیوں کی کسی کہانی کا فرضی کردار تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی تجارتی سفر کے دوران شام کے کسی علاقے میں ایسے ہی کسی یہودی عالم سے یہ کردار سنا، یہ کہانی سنی اور ذوالقرنین کے بارے میں معلومات کو اپنے حافظے میں محفوظ کر لیا۔ اور پھر جب یہودیوں کے کہنے پہ قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ذوالقرنین کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسی حافظے کی بنیاد پر جو یہودی عالم سے آپ نے ذوالقرنین کے بارے میں سنا تھا ویسا ہی بتا دیا اور اسے قرآن میں شامل کر دیا۔ اگر ذوالقرنین واقعتاً کوئی تاریخی کردار ہوتا تو قبل مسیح کے 3 بڑے مورخ فادر آف ہسٹری ہیروڈوٹس، ٹی سیاز اور زینوفن لازمی طور پہ ذوالقرنین کے کارناموں کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ان 3 بڑے مورخین کی کتابیں ذوالقرنین کے ذکر سے خالی ہیں۔ ان کی کتابوں میں ذوالقرنین کے نام کا کوئی شخص بھی نہیں ہے، اس لیے ان مستشرقین کے نزدیک ذوالقرنین یہ کوئی تاریخی کردار نہیں۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلی بات جو یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ذوالقرنین کا لفظ قرآن پاک نے خود سے استعمال نہیں کیا۔ قرآن پاک نے تو اسی سوال کو دہرایا ہے جو قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن پاک نے ذوالقرنین کے بارے میں بتایا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ ذوالقرنین کا لفظ خود یہودیوں کے ہاں مستعمل تھا اور یہودیوں کے نزدیک یہ کوئی بہت بڑی شخصیت ہے جس کے بارے میں انہوں نے قریش سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرو۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہیروڈوٹس، ٹی سیاز یا زینوفن نے اپنی تاریخ کی کتابوں میں ذوالقرنین کا نام اس لیے استعمال نہیں کیا کیونکہ ذوالقرنین کسی بھی ماضی کے حکمران کا، کسی بھی فاتح کا حقیقی نام نہیں تھا۔ ذوالقرنین تو لقب ہے۔ کرن عربی اور عبرانی زبان میں سینگ کو کہتے ہیں، یعنی کرن کا مطلب ہے سینگ، ذوالقرنین کا مطلب ہوا 2 سینگوں والا۔ تو یہ کسی حکمران کا لقب تھا، قبل مسیح کے کسی بڑے واریر اور کسی بڑے فاتح کا لقب تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذوالقرنین قبل مسیح کے کس واریر یا کس فاتح کا لقب تھا؟ تو اس حوالے سے مفسرین و مورخین کے 2 گروہ ہیں۔ پہلا گروپ جس کے سرخیل امام فخر الدین رازی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی سورہ کہف میں جس ذوالقرنین کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ بہت بڑا فاتح تھا، قرآن پاک میں ذوالقرنین کی 3 مہمات کا ذکر ہوا ہے، پتہ چلتا ہے وہ اپنے دور کا بڑا واریر تھا۔ تو امام فخر الدین رازی کے مطابق یہ خصوصیات سکندر اعظم میں پائی جاتی ہیں۔ الیگزینڈر دا گریٹ وہی اتنا بڑا فاتح تھا، اسی نے مغرب، مشرق اور شمال کی طرف فتوحات کا دائرہ وسیع کیا۔ تو امام فخر الدین رازی بڑے دلائل کے ساتھ یہ ثابت کرتے ہیں کہ ذوالقرنین جس شخص کا لقب تھا وہ اصل میں سکندر اعظم تھا۔ لیکن قرآن پاک کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ذوالقرنین صرف بڑا واریر نہیں تھا، بلکہ سورہ کہف میں یہ بیان ہوا ہے کہ وہ ذوالقرنین اللہ تعالیٰ کو ماننے والا تھا اور یوم آخرت پر بھی بلیو کرتا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت کو وہ ماننے والا تھا۔
जबकि सिकंदर आजम के बारे में हम सब जानते हैं कि वो यूनानी था और बुत प्रस्त था, और यूनानी जिस तरह देवी देवताओं को मानते थे, सिकंदर आजम भी बुत प्रस्त था। वो अल्लाह ताला और यौम आखिरत पर यकीन रखने वाला शख्स नहीं था। इसके अलावा जुल्करनैन कुरान पाक की रोशनी में बड़ा आदिल और एक इंतहाई मेहरबान शख्स था। वो एक ऐसा वॉरियर था जो जब फतह करता था तो माफ कर देता था। लेकिन हम देखते हैं कि सिकंदर आजम के जिम्मे तो खुद उसके बाप का कत्ल है, उसने अपने भाई को कत्ल किया। सिकंदर आजम कोई रहमदिल इंसान नहीं था और ना ही खुदा पर बिलीव करने वाला शख्स था। इसलिए मुफस्सरीन का एक दूसरा ग्रुप कहता है कि सिकंदर आजम से 200 साल पहले साइरस आजम, जिसका असल नाम इब्रानी नाम खोरस था और यूनानी उसे साइरस कहते थे, वो हकीकत में वो शख्स है जिसका लक़ब जुल्करनैन था। यानी कुरान पाक की सूरह कहफ में जिस जुल्करनैन का जिक्र हुआ है, जब कुरैश मक्का ने सवाल पूछा तो कुरान पाक ने कहा कि वयसअलूनका अन जुल्करनैन, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे जुल्करनैन के बारे में पूछते हैं। तो उसके बाद कुरान पाक ने जुल्करनैन के बारे में बताना शुरू किया। तो जिस जुल्करनैन के बारे में कुरान पाक ने बताया है वो असल में तारीखी शख्सियत साइरस आजम था, खोरस या साइरस आजम। उस वक्त के बड़े मुअर्रिख फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस ने साइरस आजम की मगरिब, मशरिक और शुमाल की तरफ होने वाली बड़ी फतूहात की तरफ बयान किया है। बड़े तफसील से हेरोडोटस ने लिखा है। जैसे कि सूरह कहफ में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि जुल्करनैन ने मगरिब की तरफ एक बड़ी मुहिम भेजी और खुद गया। तो हेरोडोटस हमें बताता है कि साइरस आजम ने भी पहली दफा एक बड़ा हमला एशियाई कोचक, जो कि ईरान के मगरिब में पड़ता है, एशियाई कोचक के एक इलाके, एक रियासत लीडिया के हाकम क्रूसस की तरफ पहला हमला किया। तो साइरस आजम का पहला बड़ा हमला मगरिब की तरफ हुआ और उसने लीडिया के हुक्मरान क्रूसस को शिकस्त दी। फिर कुरान पाक बयान फरमाता है कि साइरस या ये जो जुल्करनैन है, इसने मशरिक की तरफ दूसरी मुहिम की। हेरोडोटस भी हमें बताता है कि साइरस आजम ने मशरिक की तरफ बलख, बाख्तर और मकरान की तरफ खाना बदोश कबाइल के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग लड़ी। इसी तरह कुरान पाक हमें बताता है कि जुल्करनैन ने शुमाल की तरफ एक हमला किया। वहां के कुछ लोगों ने जुल्करनैन से कहा कि हमें याजूज और माजूज तंग करते हैं, हमारे इलाकों में लूट मार करते हैं, तुम हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दो। तो तारीखी हकायक से हमें यह पता चलता है कि साइरस वो शख्स था जिसने दरबंद के इलाके में याजूज माजूज के हमलों से उस कौम को बचाने के लिए एक बहुत बड़ी दीवार तामीर करवाई थी। तो तारीख में साइरस आजम के जो कारनामे हैं वो वही हैं जिनको कुरान पाक जुल्करनैन का जिक्र करके बयान कर रहा है। इसी तरह कुरान पाक बताता है कि जुल्करनैन अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान लाने वाला शख्स था। ये खसूसियात भी सिकंदर आजम की बजाय हमें साइरस आजम में नजर आती है। साइरस, जिसका असल नाम खोरस था, उसके बारे में तो ये कहा जाता है कि वो शायद नबी था। जुल्करनैन के बारे में हमारे अक्सर मुफस्सरीन का यह कहना है कि क्यों कि वो नबी था, क्योंकि अल्लाह ताला खुद उससे हम कलाम हुए। जैसे कि कुरान पाक की सूरह कहफ में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, कुलना या जुल्करनैन, हमने कहा ए जुल्करनैन, इम्मा अन तुअज़्ज़िबा व इम्मा अन तत्तखिज़ा फीहिम हुस्ना, कि
तुम उन्हें सजा दो, खा उनके साथ अच्छा सलूक करो, तुम्हें इस बात का अख्तियार है। काला, जुल्करनैन कहने लगा, अम्मा मन ज़लमा फसौफा नुअज़्ज़िबुहु सुम्मा युरद्दु इला रब्बिही फयुअज़्ज़िबुहु अज़ाबन नुकरा। जुल्करनैन ने कहा, जिसने जुल्म किया तो हम उसे जरूर सजा देंगे, फिर उसे लौटा दिया जाएगा उसके रब की तरफ, तो वो उसे अजाब देगा, बड़ा ही सख्त अजाब, जहां से उसके यौम आखिरत पर यकीन का भी इल्म हो रहा है। फिर देखिए, वो अल्लाह ताला पर ईमान लाने वाला शख्स था। कहता है कि व अम्मा मन आमना व आमिला सालिहन फलहु जज़ाअनिल हुस्ना। जुल्करनैन ने कहा, और जो शख्स ईमान लाया और अच्छे अमल किए तो उसके लिए अच्छा मुआवजा है। तो कुरान पाक की इस आयत से हमें पता चलता है कि जुल्करनैन से अल्लाह ताला खुद मुखातिब हुए। कुलना या जुल्करनैनी, हमने कहा ए जुल्करनैन। इसी तरह हमें तौरात से भी पता चलता है कि अल्लाह ताला खोरस से हम कलाम हुए। अगरचे कुछ मुफस्सरीन का यह कहना है कि जुल्करनैन नबी नहीं था, लेकिन अगर वो नबी नहीं भी था तो भी इस बात का इल्म होता है कि साइरस जो है वो जनाब जरतुश्त का हम असर था। जरतुश्त ज़ोरास्ट्रियनिज्म के बानी, जरतुश्तिज्म के बानी जनाब जरतुश्त और साइरस हम असर था। और मौलाना अबुल कलाम आजाद की तहकीक के मुताबिक साइरस ने जरतुश्त मजहब को कबूल कर लिया और जरतुश्त मजहब में एक अल्लाह का तसव्वुर जिसका नाम आहूरा मज़दा है। साइरस उस आहूरा मज़दा को खुदा मानता था और एक खुदा पर यकीन रखने वाला शख्स। तो तारीखी हकायत से हमें पता चलता है कि साइरस या तो नबी था या फिर वो जरतुश्त मजहब पर ईमान लाने वाला और जरतुश्त मजहब के दिए हुए तस्वुर खुदा को मानने वाला शख्स था। तो कुरान पाक ने जो भी खूबियां बयान की हैं जुल्करनैन में, कि वो एक बहुत बड़ा वारियर था, उसने मगरिब, मशरिक और शुमाल की तरफ मुहिम्मात की और वो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान लाने वाला शख्स था, वो इंसानों पर मेहरबान शख्स था, वो आदिल था। ये तमाम खूबियां तारीखी तौर पर हमें साइरस से आजम के अंदर नजर आती हैं। साइरस ने जिस तरह फारस को और मीडिया की रियासत कंट्रोल किया, तो गोया के दो रियासतों वाला या दो सिंहों वाला कहलाया। सिकंदर आजम के बारे में भी इसीलिए कुछ मुफस्सरीन का ख्याल है कि वो जुल्करनैन है, क्योंकि उसने भी तो दो रियासतों पे कंट्रोल हासिल किया। सिकंदर आजम मकदूनिया का रहने वाला था, लेकिन उसने साथ यूनान की रियासत को भी फतह किया था। इसीलिए इमाम फखरुद्दीन राजी का कहना है कि ये जुल्करनैन है, क्योंकि ये भी दो सिंहों वाला है, दो रियासतों वाला है। लेकिन क्योंकि साइरस ने भी दो रियासतों पे कंट्रोल किया, फारस और मीडिया, इसलिए जुल्करनैन कहलाया, दो रियासतों वाला, दो ताकतों वाला। जुल्करनैन का लफ्जी मतलब तो है दो सिंहों वाला, लेकिन इससे असल मुराद है दो रियासतों या दो ताकतों वाला। तो साइरस आजम फारस और मीडिया का हुक्मरान था और बहुत मेहरबान। अब एक अहम सवाल यह पैदा होता है कि उसने क्या यह लक़ब अपनी जिंदगी में ही अख्तियार कर लिया था? जुल्करनैन, क्या साइरस अपनी जिंदगी में ही खुद को जुल्करनैन कहता था, या यह तसव्वुर यहूदियों की तरफ से उसे मिला? तो हमें इस हवाले से किताब मुकद्दस रहनुमाई फराहम करती है। किताब मुकद्दस में एक बहुत अहम ख्वाब जो दानियाल नबी का ख्वाब है, सहीफा दानियाल में दानियाल नबी का एक ख्वाब शामिल है जिसका उन्वान है दानिएल का मेंढे और बकरे का ख्वाब। दानियाल नबी
अपना ख्वाब बताते हैं कि मैंने ख्वाब में एक मेंढे को देखा जिसके 2 सींग थे, जो तो बहुत ताकतवर था, उसके सामने कोई ठहर नहीं सकता था। और फिर मैंने एक बकरे को देखा जिसका 1 सींग था और उसने इस मेंढे को मार के भगा दिया। वो 2 सींगों वाला मेंढा गोया कि साइरस और उसकी कायम की हुई सल्तनत थी, और 1 सींग वाला बकरा वो यूनान था, और 1 सींग सिकंदर आजम था जिसने साइरस की हुकूमत को खत्म किया। अल्फाज सुनिए दानिएल का मेंढे और बकरे का ख्वाब। कहते हैं, मैंने आंख उठाकर नजर की और अपने सामने 2 सींग वाला एक मेंढा देखा जो नहर के किनारे खड़ा था, और मैंने देखा वो मेंढा मगरिब, शुमाल और जनूब की तरफ सींग मार रहा था। कोई जानवर उसके सामने खड़ा ना रह सका। मजीद आगे फरमाते हैं कि मैंने इस पे अभी गौर किया ही था कि एक बकरा जिसकी आंखों के दरमियान एक नुमाया सींग था, मगरब की तरफ से निकलकर बगैर जमीन को छुए तमाम रुए जमीन को अबूर करते हुए आया। मैंने उसे मेंढे पर निहायत गुस्से में हमला करते हुए देखा। उसने उसे मारा और उसके दोनों सींग तोड़ डाले। मेंढा बेबस हो गया और उसके सामने खड़ा ना रह सका। तो इस ख्वाब में 2 सींगों वाला मेंढा और 1 सींग वाला बकरा इसका जिक्र किया गया है, और तारीखी तौर पर साबित होता है कि 2 सींग वाला मेंढा साइरस आजम था और उसकी कायम की हुई सल्तनत थी। इसी से मुमकिन है साइरस ने 2 सींगों से यह तस्वर लिया हो और अपनी जिंदगी में ही उसने जुल्करनैन यानी 2 सींगों वाला का लक़ब अख्तियार कर लिया। यह दानियाल नबी उन्हीं कैदियों में शामिल थे जिन्होंने 70 साल तक कैद की सजा के तौर पर बाबल में वक्त गुजारा। जब बुख्ते नसर ने यरूशलेम को तबाह किया, यह 587 कबले मसीह की बात है, तो उसने वहां से यहूदियों को कैदी बना दिया, यरूशलेम को तबाह कर दिया, हैकले सुलेमानी को तबाह कर दिया और यहूदियों को अपने साथ कैदी बना के अपने दारुल हुकूमत बाबल ले गया। अब इन कैदियों में दानियाल नबी भी थे। 70 साल तक ये लोग वहां पे कैद रहे। 539 कबले में से साइरस आजम ने जब बाबल पर हमला किया तो उस वक्त बुख्ते नसर का जानशीन और उसका पोता बेलशाजार हुकूमत करता। बेलशाजार मुकाबला ना कर सका और साइरस फातिहाना तौर पे बाबल में दाखिल हुआ। उसने बाबल में कैद यहूदियों को रिहाई दिलवाई। तो दानियाल नबी जो उन कैदियों में शामिल थे वो साइरस के सामने आए और साइरस से इस तरह उन्होंने बात की कि तुम खुदा की तरफ से भेजे हुए हो, तुम्हें खुदा ने हमारी रिहाई के लिए भेजा है और तुम ही दोबारा हैकले सुलेमानी को तामीर करोगे, क्योंकि तुमसे 150 साल पहले यसिया नबी तुम्हारे आने की पेशगोई कर चुके, बल्कि तुम्हारा नाम लेकर उन्होंने बताया था कि खोरस नाम का एक शख्स अल्लाह ताला की तमाम मर्जियों को पूरा करेगा और वही हैकले सुलेमानी को दोबारा तामीर करेगा। तो ए खोरस, तुम खुशकिस्मत हो तो तुम्हें खुदा ने मुकर्रर करके भेजा है और तुम्हें खुदा की तमाम मर्जी हासिल है और तुम खुदा की मर्जी को पूरा करने वाले हो। यसिया नबी की पेशेनगोई जो कि तौरात में शामिल है, ये वो पेशेनगोई है जो दानियाल नबी ने खुद साइरस आजम या खोरस के सामने पढ़कर सुनाई। देखिए, जो खोरस के हक में कहता है कि वो मेरा चरवाहा है और मेरी तमाम मर्जी पूरी करेगा, यानी इस पेशेनगोई में
साइरस आजम का असल नाम खोरस वो शामिल है कि जो खोरस के हक में कहता है कि वो मेरा चरवाहा है और मेरी तमाम मर्जी पूरी करेगा। यानी अल्लाह ताला ने खोरस से मुखातिब होकर कहा। और यरूशलेम की बाबत ये खोरस कहेगा कि फिर से उसे तामीर किया जाए और हैकल के मुतालिक भी हुक्म देगा कि उसकी बुनियाद रखी जाए। खुदावन अपने ममसू खोरस के हक में यूं फरमाता है कि मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया है कि उसके सामने कौमों को पस्त कर दूं और बादशाहों का जिरा बख्तर उतार दूं। वह अल्लाह ताला की मदद खोरस के साथ थी और खुदा चाहता था कि खोरस तमाम बादशाहों की जिरा उतार दे, उनके सामने दरवाजे खोल दूं ताकि फाटक बंद न किए जाएं। अल्लाह ताला कहते हैं खोरस से कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और टीलों को हमवार कर दूंगा और मैं पित्तल के कवाड़ तोड़ दूंगा और लोहे की सुलाखें काट दूंगा। मैं तुझे अंधेरे में छुपाए हुए खजाने और खुफिया मकामात पर रखी हुई दौलत दूंगा ताकि तू जाने कि मैं ही खुदा बंद हूं, इस्राएल का खुदा जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। तो ये कितनी अहम पेशेनगोई है। ये पेशेनगोई खुद दानियाल नबी ने खोरस के सामने उस वक्त पेश जब खोरस ने बाबल को फतह किया। बाबल की फतह गोया के खोरस के मुकद्दर में लिख दी गई थी। इस पेशेनगोई को सुनकर खोरस यानी बहुत खुश हुआ और खोरस ने खुश होकर यह कहा कि हैकल सुलेमानी को दोबारा तामीर। तो उसके हुक्म पे दोबारा हैकल सुलेमानी तामीर, यरूशलेम भी तामीर हुआ। तो खोरस यानी साइरस आजम नजात दहिंदा बनकर यहूदियों की तारीख में अमर हो गया। यहूदियों का गोया के मोहसन था। अगरचे तारीख इस हवाले से हमें बताती है कि उसने यहूदी मजहब कबूल नहीं किया, वो जरतुश्त मजहब का पैरोकार था, लेकिन एक खुदा और यौम आखिरत पर ईमान लाने वाला शख्स था। क्या साइरस ही जुल्करनैन है, दो सिंहों वाला? इस हवाले से 1838 में ईरान के शहर अस्सखर के खंडरात से एक बहुत ही अहम मुजस्मा दरियाफ्त हुआ। उस मुजस्मे के ऊपर खोरस लिखा हुआ, यानी इस बात का यकीन हो गया कि यह मुजस्मा साइरस का बनाया गया है, साइरस का मुजस्मा था। और हैरत की इंतहा उस वक्त हुई जब उस मुजस्मे के सर के ऊपर दो सिंहों वाला ताज था। तो अब तो इस बात में कोई शक ही ना रहा कि खोरस या साइरस आजम ही जुल्करनैन है, क्योंकि उस मुजस्मे के ऊपर एक ऐसा ताज पहना हुआ था उस मुजस्मे ने जिसके दो सिंह थे। यानी ये डेरियस के दौर का बना हुआ मुजस्मा है, दारा का दौर का बना हुआ है, दारा जिसको सिकंदर आजम ने शिकस्त दी थी। तो साइरस आजम की कायम की हुई सल्तनत 200 साल तक रही। साइरस खुद बाबल को फतह करने के बाद भी 10 साल तक जिंदा रहा और 10 साल तक यहूदी उसकी बहुत ही ज्यादा इज्जत और ताजीम करते रहे। उसके बाद फिर ये उसके खानदान में हुकूमत रही, डेरियस का दौर आया। साइरस के 200 साल बाद सिकंदर आजम ने साइरस की हुकूमत को खत्म किया जब उसने डेरियस को शिकस्त दी। तो इन तमाम हकायक की रोशनी में कुरान पाक जिस शख्स को जुल्करनैन करार दे रहा है, हम ये कह सकते हैं कि वो तारीखी शख्सियत था। ओरिएंटलिस्ट का यह कहना कि जुल्करनैन कोई तारीखी शख्सियत नहीं, कोई तारीखी किरदार नहीं, ये हकायक के मुनाफी है। किताब मुकद्दस, हेरोडोटस की तारीख और 1838 में मिलने वाला मुजस्मा इस बात की गवाही दे रहा है कि जुल्करनैन एक बड़ी तारीखी शख्सियत था और असल में वो वही शख्स था जिसे तारीख साइरस आजम के नाम से जानती है। बहुत शुक्रिया।